everyone, welcome to Super Kalam. I am your teacher Arpita Sharma, and I've been receiving a lot of questions on the strategy to prepare for science and technology because it is a very crucial part not just for prelims but also for mains. अगर मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 3 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है and that is why I thought कि instead of guiding each and every student through mail, why not create a holistic session on it wherein every student can participate and can understand the exact strategy that you require to clear science and tech, to prepare science and tech with confidence, even if you are not from the background of science and tech. क्योंकि जिनका बैकग्राउंड होता है साइंस टेक में उनके लिए फिर भी कॉन्सेप्ट को समझना इजी रहता है, बट स्टूडेंट्स and people like me who are from commerce background or who are from arts background, we have not studied science and tech in that detail, right? तो इसीलिए ना हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ों पे कोप अप करना, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी लेकर आना, उसमें टाइम लगता है. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर अस. No, it is not. If we try to understand something, how can it be impossible to do so? But the point is, it takes time. But here, I'm going to help you in understanding the strategy so that in both prelims and mains, you can deal with science and tech with utmost confidence. Okay? तो देखो, सबसे पहले whenever we come to strategy, तो यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रैटेजी में सबसे पहला रोल आ जाता है सिलेबस का. द फर्स्ट एंड foremost role is that of syllabus, because in every class that I take, I have tried to explain to the students कि please do not run after the books or resources in the market at first without going through the syllabus. अगर syllabus नहीं समझा है आप लोगों ने, then it will be very tough for you to understand what to study, from where to start. I have seen students, they ask me, ma'am, which NCRT to refer to, and even in the NCRT, which chapter to refer to when we talk about preparing for science and tech. Half of the students have not gone through the previous year questions also. If you have no idea what they are going to ask, if you have no idea how they are going to ask, this is the what of UPSC, the syllabus. This is the how of UPSC, how the questions are framed from the syllabus. If these two things are not clear, then it will become very tough, not for science and tech only, but for every other GS subject. And preparing for science and tech section for UPSC exam requires a strategic approach. Why? Because it is very dynamic. बहुत डायनामिक टॉपिक है ना, सब्जेक्ट ही डायनामिक है अपने आप में, एंड इट इज लिंक्ड विद करंट अफेयर्स. 98 to 99% of science and tech is current affairs oriented, and from these current affairs only the concepts will be taken up. ऐसा नहीं है डायरेक्टली करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, इसी करंट अफेयर से कॉन्सेप्ट निकाले जाएंगे. वैक्सीन आर इन न्यूज, वैक्सीन आ गया टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट आ गया. इम्यूनिटी, इसी में से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाएगा. व्हाट इज डीएनए, यहीं से निकल के आ जाएगा. व्हाट इज आरएनए, यहीं से निकल के आ जाएगा. एमआरएनए क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, क्रिस्पर कैस9 न्यूज में था. So all these concepts I have picked up from the current affair itself, and these are GS concepts. ये आपके GS का पार्ट बन जाते हैं, but I have picked it up from the current affair itself. तो आप interlinkage समझ रहे हो? There is a very deep interlinkage between GF and GS and current affairs. Very deep. If you understand it, you will be able to ace any subject in UPSC. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी का सिलेबस अपने पास रखेंगे. when we have UPSC syllabus with us, it will become really easy. Now UPSC syllabus is divided into two parts. We have prelims का syllabus and then we have the mains का syllabus, है ना. prelims और mains का दो syllabus है हमारे. इन प्रिलिम सिलेबस दे फोकस ऑन जनरल कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पर आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया जाता है. ओके, बेसिक साइंस जो है, फोटोसिंथेसिस, यूट्रोफिकेशन, दीज आर बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑन विच दे विल फोकस ऑन. any recent technological development, recent tech development. Okay, these are the two areas where they will focus. तो ये तो हो गया आपका current affairs. This is your current affairs. एंड यहाँ पर बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से निकल कर आते हैं. विच एनसीईआरटीज वी हैव? दी एनसीईआरटीज बेसिकली फ्रॉम क्लास 6 to 10th. जो एनसीईआरटीज है, बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द मेंस. मेंस के सिलेबस में क्या होता है? इट इज मोर एनालिटिकल इन नेचर.
इसकी एनालिटिकल नेचर की वजह से ये थोड़ा सा डरावना लगता होगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, बिकॉज हेयर इन एनालिटिकल मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफन स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एनालिटिकल इन नेचर. Analytical means the focus in this case would be on the emphasis on the of technology impact of impact on society, impact of technology on society, on economy, on environment. This is the main perspective of looking at science and technology. Okay? तो सबसे पहले चलो रिसोर्सेस पे आ जाते हैं. जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, जो कि प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है, फॉर बेसिक्स व्हाट डू वी नीड? बेसिक्स के लिए वी नीड एनसीईआरटी बुक्स. ठीक है, इन दी एनसीईआरटी बुक्स class 6 to class 10th standard, they will help you to build a very strong foundation in the concepts of physics, chemistry, biology, environmental science. Then the next step is the NCERT again, but NCERT of class 11th and class 12th. Now here in class 11th and class 12th you have to read selectively. यहाँ पर आपको पूरी पूरी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी. यू हैव टू रीड ओनली दोज टॉपिक्स विच आर कनेक्टेड विद बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी, विच आर कनेक्टेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, विच आर कनेक्टेड टू मॉडर्न फिजिक्स. सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, ओनली दोज टॉपिक्स विच आर कनेक्टेड टू बायोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फिजिक्स. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो हमने बेसिक रिसोर्सेस या बुक लिस्ट आपकी देख ली. ठीक है, नाउ यू डू नॉट हैव टू गो आफ्टर रन अराउंड आफ्टर फैंसी बुक्स, वो नहीं करना है. यही चेकलिस्ट आपको अपनी बेसिक्स के लिए तैयार रखनी है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करंट अफेयर्स. अब यहाँ पर भी देखो, ये तो हमने स्टैंडर्ड देख लिया, अब यहाँ हम करंट अफेयर्स पे आएंगे. इन करंट अफेयर्स यू हैव टू फॉलो डेली वन न्यूज़पेपर. आइदर इट कैन बी द हिंदू न्यूज़पेपर or it can be the Indian Express newspaper. Any one newspaper you have to pick up, because any mission, any new kind of discovery that has been made, ठीक है, space discovery, anything, it is always published in the newspaper. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लो प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस रिपोर्टर मैगजीन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर करंट अपडेट्स, एंड वन न्यूज़पेपर, दैट इज इनफ. सो हियर यू देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है आपको. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एम आई टॉकिंग अबाउट? बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रिसेंट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया. ये एरिया आपका पूरा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दीज आर द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन. तो हमने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी तो समझ ली. वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स इन साइंस एंड टेक. Okay, we have to study the basic concepts from NCERTs, and technology के लिए हमें current affairs के लिए we need to focus on one newspaper and one science reporter magazine. Now the next question is, what about mains भाई? मेंस का क्या करना है? मेंस में कैसे एनालिटिकल हुए हम? तो देखो, आपको करना क्या है, आपको इम्पैक्ट पढ़ना है मेंस में, है ना. नाउ सबसे पहला इम्पैक्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट. टेक का क्या इम्पैक्ट रहता है? So here you have to write about, whenever you are studying about any new technology, start making notes, and in the notes you have to write about how these technologies, they influence various sectors like agriculture, like healthcare, because these are the questions only which are asked, like education, like governance, technology in governance, e-governance भी हो रहा है आजकल, तो e-agriculture भी हो रहा है, right? So how in these various sectors technology impacts. Similarly, second, गवर्नमेंट पॉलिसी अब पढ़ोगे इन साइंस एंड टेक, है ना. तो यहाँ पर आपको अवेयर रहना है. पॉलिसीज लाइक डिजिटल इंडिया, यू हैव टू प्रिपेयर दैम, ठीक है, एंड देयर इम्पैक्ट. देन पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, है ना, ये मेक इन इंडिया की पॉलिसी हो गई. देन देयर आर स्पेस मिशंस, गगनयान, चंद्रयान, शुक्रयान, आदित्य L1. तो आपको स्पेस मिशंस के बारे में अपडेट्स लेती रहनी है, पढ़ते रहना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसरोज अचीवमेंट.
अभी तक इसरो ने जब से स्टैब्लिश हुआ है, सिंस द डे इसरो हैज स्टैब्लिश्ड, what are its achievements that you have to make notes on. Then third important aspect you have to focus on is the international collaboration, because we are collaborating with US also on the clean energy mission. ठीक है, एआई के अगर हम देखें एस्पेक्ट से भी हम काफी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं. तो फोकस ऑन द इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भूलना मत. सिंस द लास्ट 5 years ना, यूपीएससी हैज स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ लॉट. बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड इन मेंस ऑल्सो. सो व्हाट इज, इसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, इसके अंदर इम्पैक्ट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाता है. जीन एडिटिंग इज वन सच एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डेटा सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, क्रिटिसिज्म आ जाएगा, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच. ओके, सो दिस इज हाउ फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव यू हैव टू अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सभी को? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू माय फेवरेट टॉपिक. My favorite topic over here in this class is that there are students who ask me कि मैम important topics बता दो आप हमको. If you tell us important topics, at least we would have something to start with, है ना, कुछ तो हमें एक broad structure मिल जाए कि हाँ चलो इससे पढ़ना शुरू करते हैं. तो what can be the important topics? देखो, पहला तो हो जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी. स्पेस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर इसरो के मिशंस, मार्स मिशन, मून मिशन, सैटेलाइट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट. फिर आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में जीएम क्रॉप्स, क्रिस्पर कैस9, डीएनए, आरएनए, डीएनए सीक्वेंसिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी, जिसमें आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना. क्यूबिट्स के ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू रिमेंबर इन प्रीलिम्स. देन वी हैव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था. देन 5G टेक्नोलॉजी, अगेन सिंस द लास्ट 4 years क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड ऑन 5G टेक्नोलॉजी इन प्रीलिम्स. देन आपको पढ़ना है नैनो टेक्नोलॉजी. नैनोटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ नैनोटेक कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन. ठीक है, अभी न्यूरल लिंक के ऊपर भी आ रहा है न्यूज काफी, इलॉन मस्क के चलते, है ना. तो ये आपको पढ़ना है न्यूरल लिंक क्या है. देन डिफेंस टेक्नोलॉजी. डिफेंस टेक्नोलॉजी में द इनोवेशंस डन बाय डीआरडीओ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम इसमें आ जाता है. एंड देन वी हैव द एनर्जी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटसेट्रा. ओके, एंड विद दिस do not forget कि you have to download last 4 years prelims also and mains also question paper. Last 4 years या 5 years के PYQs download करके whatever topics you have studied, for example you studied quantum computing today, search question on quantum computing in prelims, asked in prelims on Super Kalam or in mains question paper, and try to attempt it. Try to get it evaluated instantly by Super Kalam so that you can see कि what you have studied, are you able to write question on it. तो ये important रहेगा आपके when it comes to preparing science and tech. And the resources I've told you: PIB, Press Information Bureau, for knowing the latest current event or discoveries in science and tech, Science Reporter magazine, one newspaper, and these NCERT books. This is enough. This preparation of science and tech, you can also integrate it with consistent revision. Update yourself on current affairs. Answer writing practice should go on. मतलब उसमें तो कोई स्टॉपेज आना ही नहीं चाहिए. That is a must. उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो. Whatever you have studied, search questions on it and try to answer it and get it evaluated instantly by सुपर कलाम. तो ये रहेगा आपका साइंस एंड टेक की सॉलिड फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी. फोमो क्रिएट नहीं करना कि नहीं मैम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी और भी बुक्स बताओ. नहीं, जब यही रिक्वायर्ड है यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, व्हेन दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, देन व्हाई टू रन आफ्टर अदर सोर्सेज हियर एंड देयर, है ना. So this was our strategy. If you have any other doubt also na, you can reach out to me on this email ID, ask@kalam.in. Okay, thank you so much everyone. Enjoy your day and do complete your revision. जो भी आज टारगेट्स आपने सोच के रखे थे उनको रिवाइज जरूर करना.